Good evening, students. So, I'm here back with our spellings. So, do you really want to master your spellings? So, whatever rules we have done till now, I hope you have learnt them and you have made your notes properly. So, rule of IE, EI, floss rule, kids rule. Then, so many we have done important rules. Now, today we will work on silent E and double consonants. Why spellings have silent E and when do they have silent E, and when we use double consonants, how it affects our spellings. But before that we start, let's have a look at this video. Okay, so very beautifully in the video you have seen how the C makes a difference to the word. Now you see the typical E after a consonant and the end of the word is silent, like we have seen in the tape. Okay, tape. We pronounce it as tape, but the E is silent. Okay, so the E makes the vowel sound of the word or syllable long, like the I sound in kite. When you see E is coming here at the end of the word syllable, but it will say its word vowel A. Tape. We will say tape. We will not say tape. E will not be pronounced. A will be pronounced. Okay. So instead of short, like the I sound in kitten. In kitten, kitten, kitten. The sound is short. Okay. Kitten. It's important to get the silent T right because its presence or absence can change the meaning of the word. So meaning of the word will be changed, like it was tape and tap. Tap and tape. So the meaning is changed. So E has a lot of importance. So be careful with your E. Like you see the sentence, the monkey bit me. Keep your fingers out of the cage. The monkeys bite. Okay. So you see how the E is. Now E is here. Here we are pronouncing this word as short vowel. Bit. Bit. Okay. So short sound is there. But when we put a E, then we will pronounce it long. Bite. How we will pronounce? Bite. That's why when we are doing reading, that time also we have to pay attention this silent E. Okay. Adding E to the end of the bit, the word changed from past to present tense. See? Bite, bit, bitten. So tense is also changed. Don't cut yourself on the sharp knives. The kitten is really cute. Now you see cut and cute. In this case, the silent E creates a completely different word. A totally different word has cut, cute. Now when you add suffixes like ed, er, est, the silent E is usually dropped from the end of the root word. Now if we are adding ed, okay, and if we are adding est, er, then what happens? Then E is usually dropped. The silent E which is coming like a hope. Okay. Hope. So when we add ed plus ed, then we don't double. We say hoped. We say hoped. Okay. So remember this. So ed, er, est whenever you add, the silent E is dropped. Usko hata diya jata hai. The dog bared his teeth at the male's career. The baby's eyes were the bluest I had ever seen. Clear? Now there are lots of example of I as bribe. Okay, E is coming, but we pronounce it bribe. I is pronounced not E. Tribe.
hide, wide, bride, life, wife, bike, like, file, mile, pile, crime, time, fine, wine, shine, spine, ripe, stripe, rise, wise, bite, quiet, right, dive, drive, fire, tire, wire, admire, desire, entire, invite, beside, divide. So you see, I is pronounced and E is silent. Here also tape, cape, name, pipe, main, hide, maze, five, tune, vote, tube, hole, flute, robe, mule, robe. So this will help you in learning pronunciation also. Now the jobs. What does silent E does mainly? See, the silent E makes the vowel before it say its name. So whichever vowel is coming before it, you will make that sound only. Like cake, you will not say A is coming before E. So we will make the say its name. A will take its name. A, cake. I, so bike, co, O, cone, cube, U. Okay, then this rule already we have done. The C will be pronounced as S whenever it comes before E. So nice prince. It is not Nike, prink. Okay, nice prince. G, S, J, huge, wedge. देन VIU, ये वर्ड्स जो हैं VIUZ, इनसे कभी भी लास्ट अल्फा कभी भी वर्ड खत्म नहीं होता इन पे, तो इन सब के पीछे ई लगा देंगे तो ये बन जाएंगे. जैसे 12, पाए, ग्लू, हाँ, स्नीज, स्नीज माने छींकना. देन शोज अ वर्ड नॉट अ प्लूरल, ये बताते हैं कि शायद प्लूरल नहीं है. हाउस, हाउस, ठीक है, ई लगाए पीछे इसका मतलब प्लूरल नहीं बन गया वो. मेक थ साउंड वॉइस्ड. वॉइस साउंड क्या होती है? जिसमें आवाज के संग एक प्रेशर आता है. जैसे हमने कहा बात, 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 तो आप देख रहे हैं थ थोड़ा सा वॉइस्ड है. तो ये एड्स अ वॉवल टू सिलेबल, वॉवल भी ऐड करता है. जैसे टर्टल, टर्टल में एक वॉवल ऐड कर रहा है, TLE, एक पूरा सिलेबल बना रहा है. टर्टल, टर्टल. अभी हम आगे आपको और भी बताएंगे कि आर की साउंड को भी हम कब प्रोनाउंस करेंगे. ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम इसको लेंगे. I hope silent E is clear to everybody. Now there is a worksheet, you can do it. BIKE, bike, side, hike, time, wake, late, take, cake, you can do it. Now you see CVCE rule, यानी कि consonant, verb, consonant और E. ये यही फॉर्मूला है. ओके, जिसमें E साइलेंट रहता है और V का हम प्रोनाउंस करते हैं. अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े. I hope it is clear now. Okay, now we take the second very important topic is the double consonants. Already we have done the floss rule. Floss rule आपको याद है? FLOSS हमने किया था कि जो वर्ड F से खत्म होते हैं, L से खत्म होते हैं, O से खत्म होते हैं या S से खत्म होते हैं या Z की O से नहीं, जो Z से खत्म होते हैं उनको हमेशा डबल लिखा जाता है, शॉर्ट में भी. तो डबल कॉन्सोनेंट्स कैन बी रॉटन बट रूल्स शुड नॉट बी फॉरगॉटन. तो ये आपको सड़े हुए लग सकते हैं बट उनके रूल्स हमको याद रखने चाहिए अगर आप करेक्ट स्पेलिंग करना बोलना चाहते हैं. थोड़ा बहुत इजी है ये. इसके 2 ही 3 रूल्स हैं. इसको थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी परफेक्ट इन इट. सी द फर्स्ट सिलेबल. फर्स्ट सिलेबल अगर 1 सिलेबल वर्ड है यानी कि 1 सिलेबल का वर्ड है, जैसे कोई भी आप एक वर्ड ले लीजिए, कट, ठीक है, कट. तो इसमें आप देखिए ये क्या है. जब अब कट में तो नहीं आएगा, लेकिन हमने आपको फ्लॉस का रूल बताया था ना, FL और S. फ्लॉस का रूल था FLS. ओके, तो F से पफ, पफ डबल आ रहा है ना. L पुल, पुल है ना. फिर आपका ये FLS, S से वर्ड खत्म होने वाले S, S डबल आ रहा है. तो ये फ्लॉस रूल्स हम इसको दोबारा एक बार आप देख लीजिएगा, मेरे फर्स्ट वीडियो में ये पूरा है क्लियर. तो फ्लॉस रूल्स, तो इसलिए डबल आता है. दूसरा वॉवल, अगर शॉर्ट वॉवल है ना, जैसे हमने कहा हिट. हिट क्या है हमारा? एक शॉर्ट वॉवल है, HIT, हिट. तो आप ये देख रहे हैं, शॉर्ट वॉवल जब होगा तो हमेशा लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल होगा, ठीक है, हिट. या फिर कॉन्सोनेंट तीसरा क्या है? फर्स्ट 1 कॉन्सोनेंट आफ्टर द वॉवल. या लास्ट में आप देखिए जैसे हमने बोला कट, तो यहाँ पे T है,
वो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले यू है, वॉवल है, तो जब ऐसी कंडीशन हो, जब लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले वॉवल हो, तो वो हमेशा डबल होगा। तो ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं, मेनली बहुत ईजी है ये 3 रूल। अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी भी आपके डबल कॉन्सोनेंट्स करने में गड़बड़ नहीं करेंगे। जैसे देखो बिग, बिगर, देख सकते हैं आप, बिग का बिगर। अब बिग में क्या है, एक तो ये सिंगल, अगर आप बिग को देखें तो ये टोटल एक सिलेबल का वर्ड है पहली बार। दूसरा, इसमें शॉर्ट वॉवल का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, शॉर्ट वॉवल, बिग, बिग नहीं बोल रहे, बिग शॉर्ट वॉवल है। और तीसरा, जी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले आई आ रहा है। ये तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, तो ये बिल्कुल इसके साथ जब भी हम कोई भी सफिक्स ऐड करेंगे तो वो डबल होगा कॉन्सोनेंट। बिग, बिगर, विन, विनर, ड्रॉप, ड्रॉपिंग, ड्रॉप्ड भी हो सकता है, ईडी भी लगाएंगे तो, है ना। पुट, पुटिंग, होप, हॉप, हॉप्ड, ठीक है, हग, हग्ड। तो ये आप ध्यान रखेंगे ये 3 रूल का। अब ये डबल द कॉन्सोनेंट, ये सब एग्जाम्पल्स उसी के हैं, सारे एग्जाम्पल्स उसी के हैं। देखिए टैप, टैपिंग, टैप्ड, जॉग, जॉगिंग। आप आईएनजी लगाएं या ईडी लगाएं, कुछ भी लगाएंगे अगर आप, तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। कंडीशन क्या है, वही कंडीशन है कि एक सिलेबल होना चाहिए, 1 सिलेबल वर्ड होना चाहिए। दूसरा, उसके आखिरी में कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल होना चाहिए, शॉर्ट साउंड होनी चाहिए वॉवल की। बस ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए, आपका ये मिस्टेक नहीं होगा। जॉग, जॉगिंग, जॉग्ड, शॉप, शॉपिंग, शॉप, शिप, शिपिंग, शिप्ड, रन, रनिंग, रनर, स्टॉप, स्टॉपिंग, स्टॉप्ड, बिगिन, बिगिनिंग, बिगिनर, रन, रनिंग, बिग, biggest, hot, hotter, bag, baggage. If the ends with 1 vowel and the consonant, double the final consonant. ये रूल हम कर चुके ही हैं, है ना, अभी सभी में ये रूल अप्लाई हो रहा है। नाउ फिर से वही चीज़ है, इन अ वर्ड विथ 1 syllable, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट ओनली इफ द वर्ड एंड्स इन 1 vowel and 1 consonant. अगर कोई भी वर्ड 1 vowel और 1 consonant से खत्म हो रहा है, एक सिलेबल का वर्ड है, हिट जैसे, कट है जैसे, है ना, शॉर्ट साउंड है, सिंपल है, तो उसमें हमेशा डबल करना है। इन अ वर्ड विथ 2 or more syllable, डबल द फाइनल ओनली इफ द वॉवल एंड्स इन 1 vowel प्लस 1 कॉन्सोनेंट एंड द फाइनल। अभी एक नया आ गया इसमें कि स्ट्रेस होना चाहिए। जैसे कैसे, हमने बोला बिगिन, BEGIN, बिगिन, ये देखिए 2 सिलेबल वर्ड है, बिगिन, ठीक है, 2 सिलेबल का वर्ड हो गया ये। अब हम इसमें लास्ट वाले जो हमारा है, देखो हमारा रूल अप्लाई हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवल है, आई है और एन है, ठीक है, आई और एन है, तो हमारा रूल अप्लाई हो रहा है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हमको देखनी है 2 सिलेबल वाले वर्ड्स में, कि वो लास्ट वाला जो सिलेबल है वो स्ट्रेस होना चाहिए, उस पर जोर आना चाहिए। बी गिन, गिन, गिन पे हम जोर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ये डबल हो जाएगा। बिगिनिंग, इसलिए बिगिनिंग की स्पेलिंग बहुत गलत बच्चे लिखते हैं, क्योंकि हम इस रूल को नहीं जानते। आज हम ये पढ़ लिया है, अब हमारी कभी भी ये स्पेलिंग गलत नहीं होंगी, ठीक, ये रूल। तीसरा, एट द एंड ऑफ द वर्ड डोंट काउंट WXY एज अ कॉन्सोनेंट। कभी भी अगर आखिरी में WX और Y दिया है तो उसको ये मत मान के चलिए कि कॉन्सोनेंट और डबल कर दें, ये गलती नहीं करनी है। तो WXY को कॉन्सोनेंट की श्रेणी में हम नहीं मानते, ठीक। फिर वही वाली चीज़ है कि जो एक्सेंट है, ये वाला रूल वही है कि अगर एक्सेंट हो रहा है तो ही, जैसे कंट्रोल, कंट्रोल, ट्रोल पे हम कर रहे हैं ना, कंट्रोल, ट्रोल पे हमारा स्ट्रेस आ रहा है और हमारा रूल भी अप्लाई हो रहा है, वो कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल आ रहा है ट्रोल में, दिख रहा है आपको, तो कंट्रोल्ड। बिगिन, बिगिनिंग। अब जब उसमें एक्सेंट नहीं आएगा लास्ट में तो हम उसको नहीं डबल करेंगे, जैसे फोकस, 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 फो पे स्ट्रेस है हमारा, कस पे स्ट्रेस नहीं है, तो इसमें हमारा डबल सिलेबल नहीं होगा, डबल कॉन्सोनेंट नहीं होगा। वर्शिप, हम वर्शिप नहीं कहते, वर्शिप, वर्शिप, शिप साइलेंट रहता है, व पे हमारा स्ट्रेस रहता है, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये देखिए, ये फ्लॉस वाला रूल आ गया, जिसमें हमने आपको बताया था F, L और S या Z, इनमें से जब भी ये वर्ड इससे एंड होगा तो वो डबल होगा। क्लिफ, ग्लास, फिज, बेल, ये हमेशा डबल होंगे, ये फ्लॉस रूल है। फिर ये है CVC। CVC मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। ये हमको देखना है कि कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट अगर है तो डबल कर देंगे सीधा, ये तो बहुत इजी है। जैसे रॉब, सिट, स्टॉप, ड्रॉप, ग्रिप, ठीक। देखो इसमें भी डिनर, 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 कॉटेज, पिटेड, ये
सब वन सिलेबल वर्ड हैं. कॉफिन, रबर, इसको हम कभी भी दो सिलेबल, डिनर नहीं पढ़ते, डिनर, डिनर. कॉटेज, कॉटेज, पिटेड, ड्रिजल्ड, कॉफिन, रबर, ये सब वन सिलेबल वर्ड्स हैं. ठीक है, तो इसमें इसलिए हमने आखिरी वाले को हम डबल कर देंगे. ओके, नाउ इधर देखो, लिसन, एक्सेंट नॉट ऑन फाइनल सिलेबल सो नो डबलिंग. अब ये एग्जाम्पल आ गया जिसमें लास्ट में एक्सेंट पे जोर नहीं है, जैसे लिसन, लिसन, लिसन. हम टिन नहीं बोलते, लिस्टन नहीं बोलते, लिसन, लिसन. तो ये लिस पे जोर है, टिन पे जोर नहीं है, इसलिए डबल नहीं होगा. हैपन, हैपन, हैप, हैपन, हैपन नहीं बोलते, हैपन, हैपन. तो हैपनिंग में डबल नहीं होगा. लेकिन यहाँ देखो, बिगिन, बिगिन, बिगिन. क पे जोर है. प्रीफर, फ पे जोर है, तो ये सब डबल हो जाएंगे. इसी तरह इसमें देखो, डाइन, डाइन डिनोट्स लॉन्ग. अब ये देखो, जो लॉन्ग वॉवल वर्ड है उनमें कभी भी डबल नहीं होगा ना. अभी हमने शुरू में ये 3 रूल पढ़े थे. शॉर्ट वॉवल होना चाहिए, जैसे जिसके पीछे ई लग गया. अभी हमने साइलेंट ई इसीलिए पहले पढ़ लिया कि साइलेंट ई वाले जितने भी वर्ड होंगे वो पहले वाले वॉवल को बोलते हैं. जैसे इसमें DINE, तो ई का नहीं बोलेंगे, आवाज़ किसकी आएगी, आई की. डाइन, और खिंच के आवाज़ आएगी हमेशा, तो कभी भी इनका डबल नहीं बनेगा. ट्यून, फ्रेम, टोन, इनका कभी भी डबल नहीं होगा. ठीक, तो शॉर्ट वॉवल होना जरूरी है. अब देखो, शॉर्ट वॉवल, कॉन्सोनेंट ब्लेंड, सो नो डबलिंग. अब यहाँ भी एक और चीज़ आ गई है कि शॉर्ट वॉवल है, ये भी है शॉर्ट वॉवल, जंप शॉर्ट वॉवल है. लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा CVC रूल अप्लाई नहीं हो रहा है. कॉन्सोनेंट वर्ब वॉवल कॉन्सोनेंट नहीं हो रहा है, बल्कि 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं. कॉन्सोनेंट वॉवल, डबल कॉन्सोनेंट. जंप, MP, लिंक डबल, पार्क डबल, बॉन्ड डबल, फॉर्म डबल. तो इस केस में भी हमारा ये नहीं होगा. क्लियर, डबल कॉन्सोनेंट का यूज नहीं होगा. फॉर डबल कॉन्सोनेंट्स, आउट फॉर डबल कॉन्सोनेंट्स, इट कैन बी डिफिकल्ट टू हियर देम व्हेन अ वर्ड इज सेड अलाउड. जब हम किसी वर्ड को जोर से कहते हैं तो हम सुन नहीं पाते हैं कि डबल कॉन्सोनेंट है. स्पेशली इफ द वर्ड हैज ओनली 1 सिलेबल. अगर एक 1 सिलेबल वर्ड है तो बिल्कुल पता नहीं चलता. डबल कॉन्सोनेंट्स आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन वर्ड्स दैट हैव सफिक्सेस एडेड. ज़्यादातर उसमें यूज होते हैं जिसमें पीछे सफिक्स लगाते हैं. जैसे ड्रॉप में ED लगाएंगे तो ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, तो सुनाई दे रहा है ना आपको, ड्रॉप्ड, डबल. फाउंड इन वर्ड्स दैट हैव सफिक्सेस एडेड. आई ड्रॉप द हैवी, ड्रॉप, the heavy bags to the floor. Someone called for you earlier. Called, called. Some words can be pronounced as either 1 or 2 syllables, but the spelling remains the same. अब ये देखो, ये वाला वर्ड है जो स्पेलिंग, ये ब्लेस्ड, इसमें हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड. ठीक है, तो हम कह रहे हैं ब्लेस्ड. अब इसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं. द फादर ब्लेस्ड हिज सन. तो यहाँ पर ब्लेस्ड आप सुन के बताइए. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. बताइए, blessed, blessed या blessed. 1 syllable किस में हो रहा है, इसमें पहले वाले में. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. दूसरे वाले सेंटेंस में क्या कर रहा है, the father blessed his son before the wedding. तो यहाँ दोनों का स्पेलिंग सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों में अलग हो गया. एक 2 syllable हो गया, एक 1 syllable हो गया. In the sentence, blessed is pronounced as 1 syllable, blessed, blessed. Be particularly careful with words where a consonant can change the pronunciation and meaning of the word. A का बहुत डबल कॉन्सोनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मीनिंग को चेंज कर देता है. जैसे हमने कहा, कैक्टाई आर नेटिव टू द डेजर्ट, डेजर्ट है ना, डेजर्ट. वुड यू लाइक आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, डेजर्ट. अब डेजर्ट और डेजर्ट में कितना अंतर है. डेजर्ट माने रेगिस्तान, और ये डेजर्ट माने स्वीट डिश. तो डेजर्ट और डेजर्ट, डेजर्ट. ओके, so you have to be very careful with your double consonants. So I hope this was clear. And what you have to do now, you know, we have to go through all the rules once and again and practice them lots, because in the end I will be giving you dictations for this. So you please don't forget to subscribe the channel and keep learning, because it will only help you. Okay, thank you. Have a nice day. Bye.